It gives me an immense pleasure to welcome one of my close friend, batchmate, Mr. Anish Bilgor, and the guest lecturer also. Uh, I would like to, first of all, request Dean Faculty of Fisheries to felicitate Mr. Anish Bilgor. So I'm today happy that Mr. Anish Bilgor, one of our, you can say, the alumni rather, who has been a student of this college, he is today with us as an expert. I'm happy today. When he entered my room, he said, "Sir, आपके बाल थोड़े." This is life, है ना? जब यहाँ पढ़ते थे, then we were in Shahama. Then we shifted to this campus, but we were not in this building. It was this boys hostel, not boys hostel. And then he has seen this inauguration of this building, and now he says, "Sir, मुझे कहाँ पता है कि हमारा ये structure." This is life, and this is success also. So, Mr. Anish Bilgor, he is the owner of the Lakshat Feeders Private Limited, Haryana, na? Actually, Madhya Pradesh. It is itself in Madhya Pradesh, na? Yes. And he has almost the plant which is spread on 140 acres of land. And he told for the year it is almost 50 to 20 crore. And he has he is breeding there, he is making the feed, he is you can say rearing there Indian middle carpus, then there are some of the catfishes. And his this institute, so far as this unit is concerned, it is one of the biggest in the city here. So this is the thing. When he was as a student for me, he was a student. When I was teaching the most of the subjects in the faculty. The FRM is having this, which I belong. There was having the most of the courses. That student most of the courses in UP from the FRM. And for me, he was, you can say, a shy, a simple, down-to-earth student who had never, I think, argued with his even colleagues, not to talk with the teachers. So this gives a satisfaction to a teacher when he sees, he was telling me, sir, एनफोर्समेंट वाले पीछे हैं, ये पैसा इतना कहाँ, ऐसा कहा ना, ऐसा कुछ बोलते हैं आजकल, है ना? He has grown fast. So, and he was telling me that, sir, I was not doing that, I will do that. It was only the death of his father that he had to take the business. So opportunities are there. And there are, you can say, for some, they have to strive a little bit harder, and for others, for some, I think Almighty itself made this channel how to go. So, but we have to strive for it. So we did that intention. We know we do have one more student there. He was also your senior. He was super senior. He is from Haryana, I think. UP, but his establishment is in Haryana. Haryana and Gujarat. He was also supposed to come, but somehow he had to had some another meeting, emergency meeting. He is coming in next workshop, and he is also. He was telling me, sir, he is doing this time as working as a consultant. Besides having his own unit, he is also having you can say two status. And he is getting, you can say, for consultancy for 1 hour he is getting, or for 1 day he is getting almost 50,000 rupees, which he has not given that fees for his semester for 6 months ago. So life goes on. There are opportunities. We do have people here who have done PhD. They say, sir, we don't have. Is there any GR post? Is there any post? We want to work for even 10,000, even 5,000 for time being. But we have to come out of those, you can say, cocoon. You have to come out of those, you can say, which comfort zone. We have to move. Once we move into a hardship, we will get something. I am telling you. I have never dreamed to be here, but I know personally how you can say I have struggled hard for. But alhamdulillah, where I went, I tried to do my best and I succeeded. I personally I tell you, wherever I went. So life is only that you have to accept this challenge.
And with this, without wasting time, we have another expert. Your lunch may be a little bit late today. It may be just by half an hour. So I request Dr. Anish. जैसा कि सर ने तो सब कुछ बता ही दिया है। मेरा नाम अनीश बिलगौर है और 2040 बैच का पास आउट हूँ। आशिफा, इशरत, ये सब मेरे वे ये सब मेरे बैचमेट है। और मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब किया, 7 साल PhD भी किया और बनानी भी था स्टील सेक्टर में। उसके बाद मेरे को लगा कि अपने एरिया में जाना चाहिए, कोस्टल एरिया में मेरे को नहीं रहना था। और गोवा, जब मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था तब मैं गोवा, महाराष्ट्र, सारा गुजरात ही कवर कर रहा था। यहाँ का सेल्स मार्केटिंग सब में जान किया था। उसके बाद में एवीज कंपनी, आप जानते होंगे एवीज कंपनी में SSGM गया मैं और ऑलमोस्ट साउथ इंडिया छोड़ के सारा इंडिया कवर कर रहा था। नेपाल, भूटान, श्रीलंका भी कर रहा था, बांग्लादेश भी कर रहा था। तो जॉब करते हुए मुझे बहुत कुछ चीज़ समझ में आई। उसके बाद PMSSY स्कीम निकली, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, 20,000 करोड़ नरेंद्र मोदी ने हमारे सेक्टर के लिए ऐड किया था। मेरे पास खानदानी ज़मीन तो थी 200 एकड़, तो वहाँ पे मैंने फार्मिंग चालू की स्कीम लेकर के, फैक्ट्रीज खोला और आज उसका ठीक ठाक टर्नओवर है। तो वही इसका लेक्चर दे रहा हूँ। तो स्टार्ट करें। नेक्स्ट, ये सबसे पहले कोई भी स्कीम, कुछ भी आपको प्रोजेक्ट करना है, कुछ इंडस्ट्रीज खोलना, तो सबसे पहला आपके पास चले जाएगा फंड। तो फंड का ऑप्शन एक है बैंक फाइनेंस, जो कि बहुत ज़्यादा टफ होता है, हर किसी को बैंक फाइनेंस तो मिलता नहीं है। गवर्नमेंट प्लान्स जो मैं आपको बताया, इसमें PMSSY है, एक अभी आई है, ब्लू रेवोल्यूशन आया है, DMF फंड है, उसके बाद में एक CM फंड भी होता है, उसके बाद में MLA फंड भी होता है, MP फंड भी होता है। सबके पास पैसे होते हैं। अब उसको कैसे निकालना है, ये आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कलेक्टर के साथ, मिनिस्टर के साथ मीटिंग करना पड़ेगा, डायरेक्टर के साथ बैठना पड़ेगा। तो जब आप उस लेवल में पहुंच जाते हैं तो ये सब आपसे मिलना चालू कर देते हैं। उसके बाद में लोन, जो लोकल के लोग होते हैं हमारे एरिया में, जो अगर आपको कुछ बिजनेस करना है तो कितने चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ हम आपको देते हैं एज ए इंटरेस्ट। 5% लेंगे, 10% लेंगे, ये भी एक ऑप्शन होता है। सेल्फ कैपिटल, खुद इतना पैसा हो जाए कि किसी से लेने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट, बैंक फाइनेंस में एक्चुअली सभी लोग पहले तो उसी में जाते हैं। बैंक फाइनेंस में सबसे पहले एक ऑप्शन है लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको LC बोलते हैं। तो LC का सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ही अलाउ है और आपका कुछ 20 करोड़ से ज़्यादा अगर कुछ टर्नओवर पहले से एग्जिस्टिंग होता है तो ही बैंक आपको LC बना के देती है, नहीं तो फिर वो छोटी मोटी वो 5-6 लाख, 7 लाख, 10 लाख की LC देगा। FD अगर हो उसके अगेंस्ट में आपको डबल लोन मिल सकता है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी होती है। स्ट्रॉन्ग गारंटर होना चाहिए, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो आपको गारंटर ऐसा होना चाहिए जो जिसके पास 100-500 करोड़ का कुछ प्रॉपर्टी हो, तब आपको 2-4 करोड़ का वो गारंटी दे देगा। आपका अगर सिविल भी डाउन है, सिविल तो आपको पता होगा ना, सिविल स्कोर भी डाउन होगा तो भी आपको मिलेगा। बैंक मैनेजमेंट सोर्स, आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप बैंक के GM को जानते हो तो वो भी सब कर देता है। ये सब सोर्स होते हैं जो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, एंटरप्रेन्योर, ये सब ये चीज़ करते हैं, जो कि बहुत लोगों को, मतलब सिस्टम के अंदर वालों को ही ये सब चीज़ पता होती है। ये बैंक में मैनेजमेंट सोर्स ये किसी को नहीं पता रहेगी, कोई आपको ऑफिशियल बताएगा भी नहीं, लेकिन ये चीज़ होती है। और 60% लोग इसी में काम करते हैं। विजय माल्या जैसे देखिए आपने, इतना बड़ा लोन लिया उसने कुछ मॉर्गेज नहीं किया। अगर मॉर्गेज करता तो अभी तक उसके ऊपर गवर्नमेंट नहीं छड़ती ना, तो उसने यही बैंक मैनेजमेंट किया था। नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्कीम में है PMSSY, NFDB फंड, NFDB, PMSSY की 2 स्कीम है। एक NFDB से आप 100% ले सकते हैं, उसके लिए आपको सारा प्रोजेक्ट पहले बनाना पड़ेगा। PMSSY आपको एक पार्ट में पैसे डिलीवर करता है।
उसके बाद जो सीएम स्कीम्स होती है, अगर कोई सीएम चाहता है कि आपके एरिया में ये सेक्टर ग्रोथ हो तो उसका वो फंड निकालता है, वो मिनिस्टर के थ्रू जाता है। जो सेक्रेटरीट में सेक्रेटरीज जो होते हैं वो लोग इसको अरेंजमेंट करते हैं। डीएमएम फंड, ये जो डीएम होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर के पास हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 100-200 करोड़ 300 करोड़ डीएमएम फंड होता है कि वो चाहे जैसा उसको एक्सपेंस में खर्च कर सकता है। ये सबसे अच्छा सोर्स है अगर आपकी किसी कलेक्टर को अच्छी है तो। नेक्स्ट, लोकल इन्वेस्टमेंट, वही आपको बताया मैंने कि किसी से लोन ले लो, बिजनेस लोन वो आपको इंटरेस्ट में देगा, मनी लेंडर्स होते हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट का जो मैंने आपको बताया तो वो कैसे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपके पास अगर 7-8 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख भी है तो आप डायरेक्ट पैसा नहीं लगा सकते। आपके वो पैसा अगर आपको मार्केट में बिजनेस में लगाना तो उसके पहले आपको अपना एडेड जो भी है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आपके पास ये पैसा भी कहाँ से आएगा। नहीं तो ये तुरंत पे तो कुछ नहीं होगा, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद कभी आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन 5 साल के बाद में जब आप थोड़ा और आगे जाते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऐसी जो एजेंसीज हैं जो पीछे पड़ जाती है। ईडी तो अभी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद से लोकल सबसे ज़्यादा जो जर्नलिस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा या तो आपसे पैसे मांगेंगे, आप नहीं दोगे तो पेपर में छाप देंगे, इंक्वायरी देंगे। वो बहुत सारी होती है, एक डीएमएम इंक्वायरी होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, पुलिस इंक्वायरी होती है। तो आपके पास कुछ भी पैसा है तो उसको ऐसे ही हाथ बदल के नहीं लगाना। ऑडिट वगैरह होना चाहिए आपका कंपनी का, पहले आप अपना कंपनी फॉर्म कर लो, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ो। फैक्ट्री खोलना है तो साइट सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्लान लैंड चाहिए आपको, वर्क आवर बिल्कुल नहीं चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए। नहीं तो पता चल रहा है कि आपने कैसे भी ले लिया, आपका 30-35 लाख तो आपको उसको लेबलिंग करने में लग गया। ग्राउंड वाटर सोर्स होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आप किसी क्रीक का किसी रिवर का पानी नहीं ले सकते। इंडस्ट्रीज में अगर आप ऐसा ले ली तो बॉयलर का ही आपको मेंटेनेंस साल का 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख भी जाएगा। ग्राउंड वाटर सोर्स जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, तो इससे आपका बॉयलर अच्छा एक कंडीशन में रहेगा। जैसे समझ लो बाइक में अगर ठीक पेट्रोल जाएगा तो ही काम करेगा, तो सिस्टम खराब हो जाता है। जोन सेफ होना चाहिए। आपकी इंडस्ट्री लग गई कहीं भी इधर उधर पे और कोई आकर के आग ही लगा दे, कोई कुछ कर दे, कोई ब्लास्ट करा दे, ये सब बहुत कॉमन चीज़ होती है जो इंडस्ट्रीज में होती है। वहाँ के लोकल लोगों को आप देख लो कि कैसे हैं, वो काम करने देंगे कि नहीं देंगे। आपको पता चल रहा है कि जैसे सचिन तेंदुलकर ने एक फार्म बनाया था गोवा में, उसको टाइगर प्रॉन के लिए, उसको 75 एकड़ का फार्म था, उसने बनाया, उसको उसकी कंसल्टेंसी में ही कर रहा था। उसका सारा उसको स्टॉकिंग भी करने दिए, फीड भी आ गया। उसके बाद जो लोकल लोग हैं उन्होंने पूरा स्ट्राइक कर दिया और एक आदमी को तो जला के भी मार दिया। तो सचिन ने बोला कि अब जाने दो, उसमें काम ही नहीं करना है। तो आज भी वो मुंबई के आगे सफाला एक जगह है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पे आर्मी फार्म एज इट इज है, वहाँ के लोकल लोगों ने काम किया। तो ये सब भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए ठीक ठाक। आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, उसके बाद में आपको उसको सेल आउट भी करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी होना चाहिए। बाईपास रोड वहाँ से पास में होना चाहिए। गवर्नमेंट का जो भी पावर ग्रिड्स होता है या कुछ पावर प्लांट होता है उसके पास होना चाहिए आपका, जिससे कि आपका जो ट्रांसफार्मर है उसकी लाइन आप 11,000 kV लेते हैं, 30,000 लेते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, आपका मशीनरीज की कैपेसिटी, आपका एक्सट्रूडर की कैपेसिटी, ये सब इसमें उसके हिसाब से आपका पावर सप्लाई, आपका टीपी वगैरह सब फिक्स होता है। अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है तो आपको इतना सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वो आपको सब कुछ दे देगी, आपको सिक्योरिटी दे देगी, आपको वाटर दे देगी। तो लैंड तो उनका ऑलरेडी प्लेन ही होता है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया जो बोलते हैं ना, वो इंडस्ट्रियल एरिया, तो आपको फिर जितना सी चीज़ बताया मैंने वो आपको किसी चीज़ की करने की जरूरत नहीं है। मेरा अभी तक किसी इंडस्ट्रियल एरिया में कोई प्लांट नहीं है, तो मैं ये सब कुछ प्रोसेस मेरे को पूरा 6 महीने लग जाता है सब कुछ चीज़ करने के लिए। अगर आपका इंडस्ट्रियल एरिया आपको बस परचेस करना है और फिर काम चालू कर देना है।
फ्लोटिंग फिश फीड का एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा उसी का प्लान है। तो मेरी 3 फैक्ट्रीज है, उसमें एक 1 टन की है, 2 टन की है, 5 टन की है, 10 टन की ऑन प्रोसेस है। तो ये पर आवर इनकी कैपेसिटी है, और हम लोग 28 या 18 आवर्स ही चलाते हैं, या फिर 10 आवर्स ही चलाते हैं उसको, या फिर जैसा भी डिमांड है। 24 आवर हम लोग कभी नहीं चलाते। नेक्स्ट सर ये कौन सी डिश के लिए आपको प्रोटीन बता रहा हूँ। ये फिश प्लांट का जो प्रोडक्शन लाइन है ना, ये बहुत प्रकार की होती है, उसमें से यही टाइप है। इसमें बॉयलर भी दिखेगा आपको, क्रशर भी दिखेगा, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें चाइनीज़ डिज़ाइन अलग होता है, वो सीधे सीधे हाइट पे ही होता है। उसके बाद में ये एल शेप का होता है, एक प्लेन लाइन का होता है, जैसा भी आपका बजट है। क्योंकि आपके पास अगर ज़मीन इंडस्ट्रियल एरिया में जैसा बहुत महंगा है, तो वहाँ पे आपको सीधे एक फ्लोरिंग सिस्टम में काम करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा कॉस्ट भी ज़्यादा जाता है, बस ज़मीन आपकी कम लगती है। नेक्स्ट शेड ऐसा बनता है, स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, इसी के अंदर सारे कुछ प्लांट वगैरह जो भी शेप आपको लगाना है अब लगा सकते हैं। और अगर कोई आपका प्लांट का जो मशीनरीज का जो लाइन है, वो जैसा भी शेप का रहेगा उस हिसाब का हम बना सकते हैं। नेक्स्ट मशीनरीज जो फ्लोटिंग फिश फीड में जो मेन चलती है, सबसे अच्छी कंपनी है वर्ल्ड की भुलर। एक आज भी वो नेक्स्ट जनरेशन में काम कर रहा है। आज इंडिया में उसको ऑपरेट करने वाले अभी कोई है नहीं। जो वीट फ्लोर है, वीट फ्लोर में ही लोग काम कर रहे हैं, और राइस प्लांट में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे इंडस्ट्री में अभी तक के भुलर का कोई एक्सट्रूडर इंडिया में लगा नहीं है, 1-2 साल में शायद लग सकता है। एंड्रिक कंपनी है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये ऐसा मतलब ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं करती है, कार की कंपनी है ये। इंडिया में आज आप लोग सब तो PhD कर रहे हो, लेकिन आप जब फील्ड में काम करने जाओगे तो इंडिया की रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। सब फॉरेन में वो पैसा देते हैं, वहाँ से R&D लेकर के जो भी फॉर्मुलेशन होता है वो लेके आते हैं। मतलब इंडियंस लोग ही, अगर मेरे पास खुद चाइना की कंपनी है, मैं भी चाहूँ तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, लेकिन उनके पास 50 ईयर का डाटा है। और हम लोग बस इंडिया में सारी यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी है, वो सिर्फ अपनी PhD करते थे, R&D रखते हैं, उसके बाद में एक ही बन के आराम से काम करते रहते हैं। कोई भी उस सेक्टर में जाना नहीं चाहता है। यहाँ पे हम लोग जैसे फीड बनाते हैं, तो कहाँ पे कौन सा फीड जाएगा, उसको वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ की सैलिनिटी क्या है, वाटर पैरामीटर्स वगैरह सब देखते हैं, उसके बाद ही हम फॉर्मुलेट करते हैं। लेकिन जैसे कारगिल कंपनी है, इनके पास ऑलरेडी पूरा इंडिया का सर्वे रखा हुआ है, तो ये इनका फीड का एक ही फॉर्मूला रहेगा जो कि सॉफ्टवेयर से लगता है, तो उसी से पूरा इनका इंडिया कवर करता है। वो कहीं पे रिजल्ट देता है, कहीं पे नहीं देता, तो उससे उनको ज़्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, वो अपना फॉर्मुलेशन चेंज नहीं करते। सैमसंग एक कंपनी है, इंडिया में 70% इसी की मशीनरीज लगी हुई है, ग्लोबल आई हर चीज़। जेस्को भी एक कंपनी है, ये भी अच्छी कंपनी है। रिची है, ये मैंने इसी से परचेज किया है, चाइना की कंपनी है और अच्छा प्रोडक्ट बना रही है। लोकल मैन्युफैक्चरर तो है ही, PMSSY वाले जो है ये उसी से लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना पैसा नहीं मिलता उनको कि ये बाहर की कंपनी से कुछ मशीनरीज ले सके, क्योंकि जितना पूरा बजट वो देता है उतने का उनका एक्सट्रूडर ही आ जाता है, 2 करोड़ 3 करोड़ का एक एक्सट्रूडर ही आ जाता है। तो वो सब करते हैं, लेकिन वो रहेंगे और उसके बाद कुछ समय के बाद वो लोग अपनी फैक्ट्री बंद भी कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब फैक्ट्री में जैसा लाइन, सबसे पहले हमारा ग्राइंडिंग सिस्टम आता है। ग्राइंडर बहुत सारी कंपनियां, कुछ एक सिंगल ग्राइंडर से काम हो जाता है, कोई 2-3 भी ग्राइंड करता है। और ये फॉर्मुलेशन पे और मशीनरीज के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। फॉर्मुलेशन टैंक में जाता है सारे रॉ मटेरियल्स ग्राइंडिंग के बाद, और उसके बाद में जो भी फॉर्मूला होता है उसके बाद वो मिक्सचर में जाता है। मिक्सचर में जाने के बाद में वो पूरी तरह से मिक्स होता है, और उसके बाद प्री कंडीशनर
सिलेंडर होता है, उसमें जाता है वो, उसमें वो प्रिपेयर होता है, जिससे उसमें वहाँ पे उसको मॉइस्चर मिलता है और पूरी तरह से वो एकदम हल्का आटे जैसा हो जाता है, जो आटा समझते हैं ना जैसे रोटी उस टाइप का हो जाता है। सेकेंड प्री कंडीशनर में वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। एक्सट्रूडर में आता है तो एक्सट्रूडर जो है ना मेन हमारा सब कुछ, इस इंडस्ट्री का सब कुछ एक्सट्रूडर पे डिपेंड करता है। एक्सट्रूडर 300 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक के वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बना के दे सकता है। तो एक्सट्रूडर आपको उसमें कुछ लाइनें रहती है, एडिटिव्स की लाइनें रहती है, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊँगा एक्सट्रूडर का। तो वो सब भी हमको सेट करना होता है, जो कि अगर आपने किसी बाहर की कंपनी से अगर टाई अप कर लिया हो तो वो आपको दे देते हैं, या तो फिर आपको खुद को ही उसमें स्टडी करना पड़ता है। एक्सट्रूडर एक अलग सिस्टम, अलग जनरेशन है वो। आपको एक्सट्रूडर के अलग इंजीनियर मिलते हैं और सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, आपका फीड का डाइजेस्टिबिलिटी कितना आएगा। बॉयलर भी एक्सट्रूडर में ही लिंक होता है, बॉयलर की कैपेसिटी क्या होगी, कितना स्टीम देगा और कौन सा नॉट में उसको रखना है। और एक्सट्रूडर में अभी तक ये इंडिया में इसमें यहाँ पे स्क्रू इसका बना नहीं पाया है, ये इम्पोर्ट ही होता है। जो लोकल बनाते हैं उनका एक्सट्रूडर टूल बहुत इजी रहता है, बस स्टीम देना होता है उसको। उसके बाद वो फीड बन करके ड्रायर पे जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है उसमें। उसको ड्रायर से उसको पूरी तरह से ड्राई करने के बाद में हम लोग उसको फ्लेवरिंग टैंक में डालते हैं। फ्लेवरिंग टैंक में हम लोग उसको ऑयल का स्प्रे करते हैं। वो ऑयल फिश ऑयल भी हो सकता है, या फिर एनिमल ऑयल भी हो सकता है, या फिर और कुछ जो सोया ऑयल भी हो सकता है, या पाम ऑयल भी हो सकता है, जिसका बहुत कम क्वांटिटी होता है। उसके बाद ग्रेडिंग मशीन आती है। जो भी आपके पैलेट साइज है वो अगर 4 mm है तो वो 4 mm ही होना चाहिए, ये ग्रेडिंग सिस्टम है, फिक्स होता है। फिर पैकिंग लाइन होती है और फिर आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट ये ग्राइंडर है और ये बहुत टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं कि ये एक ही डिज़ाइन है, बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। नेक्स्ट करिए। ये फॉर्मुलेशन टैंक होता है। नेक्स्ट ये है एक्सट्रूडर। ये सिर्फ इसमें एक प्री कंडीशनर लगा हुआ है, बाकी आप इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको 2 ही प्री कंडीशनर चाहिए, एक प्री कंडीशनर में भी हो जाता है। मेरे पास एक ही प्री कंडीशनर है। तो इसका स्क्रू भी है जो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो मेन उसी का मैनेजमेंट होता है। ये पूरा टोटल सॉफ्टवेयर से ही हैंडल होता है। उसका मतलब थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फीट की। वो सिर्फ अभी यूज़ कर रही है एक R&K कंपनी है, वो वाला फीड एक्सट्रूडर यूज़ कर रही है डबल स्क्रू का, और एक ग्रोवेल कंपनी है वो यूज़ कर रही है। बाकी तो सब है इसमें। नेक्स्ट करें। ये स्क्रू का देखिए आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, डबल स्क्रू है और ये जो है इसके पार्ट होते हैं। सारा कुछ इसी पे डिपेंड होता है। स्क्रू को वहाँ पे फिट करते हैं। ये ये जो है ये प्रोडक्शन लाइन का कंट्रोलर है। आपका मटेरियल कहाँ जा रहा है, कैसा जा रहा है, ये सब इसमें देखते हैं। नेक्स्ट करें।
कंज्यूमर सब लोग बोलते हैं फार्मर है, लेकिन हमारा एंड कंज्यूमर है फिश। तो फिश ही तो इसलिए मैं चाहता हूँ ट्राउट मेरे को रिसर्च थोड़ी ना करना है। और उससे शेल्फ लाइफ कम है। आपको काम कर रहा है फ्रूटिंग फील्ड का यहाँ पे कोई कर सकते हैं। कॉमर्स का को लेकर सोचोगे ना। Thank you, Mr. Anil Grigor, sir, and I'm also thankful to Mr. Sargun for joining us. It's really an honor and proud moment to listen you, sir, and it's really amazing because seeing you as a student and now you are giving lectures in your own college. This is really an amazing and proud moment for all of us. Thank you so much for joining us, and we